नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। इनकलाबी बेबाक शायर राहत इंदौरी का इंतकाल, उर्दू दुनिया में रंजो गम की लहर। SSLC इम्तिहान में गुलबर्गा को 22वां मुकाम। लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती करने वाले को सख्त सज़ा देने अखिल भारत वीर शिवा महासभा का मुतालबा। देही ज़मानत रोज़गार स्कीम में घपलों का इल्ज़ाम। शाहपुर के हल्ली सगर की रमैया को SSLC में रियासत में 14वां रैंक हासिल। यादगीर ज़िले के SSLC नताइज को बेहतर बनाने की ज़रूरत। राहत इंदौरी के इंतकाल पर शेख सिराज पाशा का इज़हार ताज़ियत। सेडम से नज़द पेश आया हादसा, शादी से लौट रहे 4 मुसाफिरीन ज़ख्मी, एक लड़की हलाक। गुरमिटकाल में दुल्हन का हाथ पकड़कर खींचने वाले का कत्ल। कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हलाक। बेल्लारी ज़िले में कोरोना के 736, गुलबर्गा ज़िला में 156 नए केस। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. पेश हैं खबरें तफसील से। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इस मशहूर शेर के खालिक उर्दू के आलमी शोहरत याफ्ता शायर राहत इंदौरी का आज सुबह इंतकाल हो गया। राहत इंदौरी साहब कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 3 मरतबा उन पर दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्होंने दाई अजल को लब्बैक कहा। उनके इंतकाल से उर्दू दुनिया में रंजो गम की लहर दौड़ गई है। वो उर्दू के इनकलाबी बेबाक शायर होने के बावजूद हिंदी में भी बेहद मकबूल थे। हालिया CAA के ख़िलाफ़ जारी मुहिम में राहत इंदौरी साहब के अशार CAA मुजाहिरीन में नया जोश और वलवला भर दिया था। वो दर्द और कर्ब की शायरी करते थे। उनका कलाम पढ़ने का अंदाज़ और लब व लहजा बेहद मशहूर था और उन्हें सुनने के लिए शायकीन, उनके चाहने वालों का ज़बरदस्त हुजूम उमड़ पड़ता था।
اے ٹی وی راحت اندوری صاحب کے انتقال پر بے حد غم زدہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے۔ راحت اندوری صاحب کے انتقال پر مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، شیوراج چوہان چیف منسٹر مدھیہ پردیش اور کمل ناتھ صدر کانگریس نے گہرے رنج و ملال کا اظہار کرتے ہوئے راحت اندوری صاحب کے انتقال کو اردو ادب کا بہت بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ SSLC امتحانات میں گلبرگہ ضلع کو ریاست میں 22واں مقام حاصل ہوا ہے، جبکہ یادگیر ضلع کو 34واں سب سے آخری مقام حاصل ہوا ہے۔ گلبرگہ ضلع کو سال گزشتہ ریاست میں 30واں مقام حاصل ہوا تھا۔ گلبرگہ ضلع کی سطح پر افضل پور تعلقے کے طلباء نے زیادہ تعداد میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے افضل پور کو A گریڈ دلایا ہے۔ گلبرگہ ضلع کے 5 تعلقہ جات نے B گریڈ اور 2 تعلقہ جات نے C گریڈ حاصل کیا ہے۔ الند، چنچولی، گلبرگہ شمال، گلبرگہ جنوب، جیورگی کو B گریڈ، چیتا پور اور سیڑم کو C گریڈ حاصل ہوا ہے۔ شیخ سراج پاشا، ترجمان، حیدرآباد کرناٹک مسلم پولیٹیکل فورم گلبرگہ نے ممتاز شاعر راحت اندوری کے انتقال پر گہرے رنج و ملال کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے تعزیتی بیان میں راحت اندوری صاحب کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، یہ ہندوستان کسی کے باپ کا تھوڑی ہے۔ میں اگر مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، میں اگر مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، میرے خون سے میری پیشانی پر ہندوستان لکھ دینا۔ یہ اس عظیم عالم سطح کے اردو شاعر کے شعر ہیں جو آج ہمارے بیچ نہیں ہیں۔ بڑے رنج و افسوس اور ملال کا آج ہم سب کو یہاں پر مقام ہے کہ آج ہم ایک عظیم ہستی کو ہم کھو چکے ہیں۔ اس اردو ادب کا مایہ ناز سپاہی کے آج ہمارے بیچ سے چلے جانے کے بعد صرف اردو ادب اور قوم کا نہیں، یہ ملک کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ڈاکٹر راحت اندوری مرحوم کی کمی شاید ہی کوئی پورا کر سکے۔ ایک ایسا نڈر شاعر جو کبھی سیاسی دباؤ یا کسی کے ڈر اور خوف سے اپنے دل سے یا اپنے دماغ میں جو سوچ تھی اس سے نکلنے والی جو آوازیں ہیں، ان کی جو فکر ہے، کبھی جو انہوں نے جنہیں پوشیدہ نے رکھی، جو بھی کہا اعلانیہ نڈر ہو کر کہا، اور خصوصاً دبے ہوئے ناانصاف مظلوم لوگوں کی پکار کی ایک پہچان بنے رہے۔ ویسے تو ان کی شاعری کی مثال دور حاضر میں بہت مشکل ہے، سماج کا ہر طبقہ انہیں سنتا تھا۔ خاص طور سے CAA کے خلاف جو ان کے اشعار تھے، وہ CAA کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے لیے ایک حوصلہ دیتے رہے۔ ایک ایسا شاعر جسے سارا ہندوستان سنتا تھا، ایک ایسا شاعر جسے سماج کا ہر طبقہ جو نا شوق سے سنتا تھا، کیا امیر کیا غریب، کیا ہندو کیا مسلمان، ہر ایک راحت اندوری کو سنتا تھا، ہر ایک راحت اندوری کے اشعار سے فیضیاب ہوتا تھا۔ ایک ایسا شاعر جو 70 سال کی عمر میں نوجوانوں میں ایک نئی امنگ، نیا حوصلہ جو نا پیدا کرنے کے لیے اپنی فکر کو جو ہے نا اپنے وہ یعنی سماج کے سامنے لا کر انہیں سوچنے کے لیے مجبور کرتا تھا، ایک فکر دیتا تھا۔ آج وہ شاعر ہمارے بیچ نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ان کے ہونے والے غلطیوں کو معاف کر انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔
अखिल भारत वीर शिवा महासभा गुलबर्गा ज़िला की जानिब से आज मिनी विधान सौदा में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा की मारिफत से चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा को याददाश्त रवाना की गई। याददाश्त में धारवाड़ ज़िले के बोगोर देहात में नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती करने और उसकी मौत के लिए ज़िम्मेदार खातियों को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया गया है। श्री गुरुमूर्ति शिवाचार्य पाड़ा, श्री रेवंत सिद्ध शिवाचार्य स्टेशन बबलाद, शरण कुमार मोदी साबिक मेयर गुलबर्गा, डॉक्टर शरण बी पाटिल, सिद्धू पाटिल अफजलपुरकर, राजू गौड़ा, गौरी चिकोटे, शीला मोतीन और दीगर ने एहतजाज में हिस्सा लिया। SSLC नताइज में यादगीर को रियासत में आखिरी मुकाम हासिल होने पर असलम शाहना सदर SIO यादगीर ज़िला ने सख्त अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि रियासती हुकूमत स्कूलों के इंतज़ामिया और वालिदैन को इस पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि आइंदा साल SSLC नताइज बेहतर लाने के लिए मुश्तरका कोशिशें की जानी चाहिए। यादगीर से ATV न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। वालिदैन को भी सोचना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से अगर रहा तो आगे यादगीर का फ्यूचर बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि एजुकेशन में अगर बच्चे आगे नहीं बढ़ेगा तो आगे फ्यूचर बहुत ख़राब रहेगा। इसी तरह से अगर देखा जाए तो स्कूल में भी इसी तरह से हो रहा है, एक सेलेक्टिव कंसंट्रेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। कोई अगर अच्छा पढ़ने वाला है तो उसको एक ए सेक्शन बना दे रहे हैं, कोई थोड़ा ख़राब पढ़ने वाला है तो उसको B सेक्शन बना दे। A सेक्शन वालों पर जैसे अच्छी उन पर तवज्जो देकर जैसे उनका रिजल्ट अच्छा ला रहे हैं, ऐसे B वालों पर जैसे उनको बस थोड़ा पास होने की कोशिश या ऐसा करा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं उनको। तो वही बच्चे जैसे जिसकी वजह से रिजल्ट खराब आ रहा है हमारा। तो ये सोचना चाहिए। सिटी में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फिर भी अच्छा रिजल्ट है, लेकिन खरियों का बहुत ख़राब रिजल्ट है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए किस तरह से इसके ऊपर क्या करना चाहिए। अब नया एजुकेशन पॉलिसी आया, उसमें अच्छी बातें आई हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसा करना है ये बहुत हमारा असल ये रहेगा। अगर इसको हम आगे नहीं करेंगे तो बहुत बुरा हालत रहेगी आगे एजुकेशन में, क्योंकि आज दुनिया इधर से उधर चल जा रही है, लेकिन हम जैसे आज हमारे यादगीर को जैसे एक हम 50% क्रॉस नहीं करा सक रहे हैं। अरुण कुमार हावनूर और राजू पुलिस पाटिल ने आज CEO ज़िला पंचायत गुलबर्गा को याददाश्त पेश करते हुए हावनूर देहात की ग्राम पंचायत की जानिब से महात्मा गांधी देही तमानियत रोज़गार योजना में हुई बदउनवानियों की तहक़ीक़ात करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कुली कार्मिकरा सेने की जानिब से कल ज़िला पंचायत ऑफिस गुलबर्गा के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए किसानों मज़दूरों को गुमराह करने और बदउनवान ओहदेदारान की हिमायत करने की कोशिश की गई। 100 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು। ಅದರಲ್ಲಿ PDO, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮೇಟ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿಗಳು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು। ಮನವಿದಾಗಾದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಣವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆವು। ಆದರೆ ಈ ಸತ್ಯಾಂಶ ತಿಳಿಯದೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂಥೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರ್ತೇವೆ। ನಾವು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಾಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೆವು। ಅದು ಸತ್ಯಾಂಶ ತಿಳಿಯದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ತರಲಿ, ನಾವು ಕಾನೂನಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತೇನೆ। शाहपुर तालुका ज़िला यादगीर के हल्ली सगर की रमैया ने SSLC इम्तिहान में रियासत में 14वां रैंक हासिल किया है। रमैया ने गुलबर्गा डिवीज़न में पहला मुकाम हासिल किया है। उसने जुमला 625 निशानात में से 620 निशानात हासिल किए हैं। रमैया ने 9 माह कबल IAS ओहदेदार
नलिन कुमार अतुल से वादा किया था कि साइंस टीचर्स की कमी के बावजूद वो एसएसएलसी में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करेंगी। यादगीर ज़िले में शाहपुर की सुषमा यलवार ने 619, प्रिया दर्शनी डीजी ने 617 निशानात हासिल करके यादगीर ज़िले में टॉप किया है। कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार के बरसरे मौका हलाक होने का हादसा कोलार तालुका बीजापुर ज़िले के रोनीहाल क्रॉस से नज़द पेश आया। हादसे के फौरी बाद कार ड्राइवर कार के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। लाल साहब नदाफ 34 साला मोटरसाइकिल सवार की इस हादसे में मौत हुई। इस हादसे के ख़िलाफ़ मुकामी अवाम ने रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। तालुका सेडम में आज 5 बजे के करीब शट्टी हौड़ा से नज़द अलमनाक हादसा पेश आया। क्रेशर जीप का अगला टायर फट जाने से क्रेशर जीप उलटकर करीब के खेत में जा गिरी। इस हादसे में एक 10 साला लड़की की बरसरे मौका मौत हो गई, जबकि 4 मुसाफिरीन ज़ख्मी हुए हैं। उन्हें गुलबर्गा के खानगी अस्पताल में शरीक करवाया गया है। बाकी मुसाफिरीन को मामूली चोटें आई हैं। क्रेशर जीप में तमाम मुसाफिरीन गुलबर्गा में शादी में शिरकत करने के बाद वापस हो रहे थे कि हादसा पेश आया। सेडम से ATV न्यूज़ के लिए मुबीन खान की रिपोर्ट। शादी के मंडप में नशे में झगड़ा करने और उसके बाद मंडप में मौजूद दुल्हन का हाथ पकड़कर खींचने वाले रौडी शीटर को दुल्हन के वालिद और भाइयों ने मौत की नींद सुला दिया। ये वाक़या गुरमिटकाल तालुका ज़िला यादगीर के परमेश्वर पल्ली में पेश आया। मोहम्मद हनीफ नामी 34 साला साकिन चिनकार रौडी शीटर का कत्ल हुआ है। दुल्हन के वालिद मोहम्मद रसूल भाइयों गुलाम इरफान हारून ने लोहे की सलाख से हमला करके उसे मौत की नींद सुला दिया। मोहम्मद हनीफ के ख़िलाफ़ गुरमिटकाल पुलिस स्टेशन में कई एक मुजरिमाना सरगर्मियों के मुकदमात दर्ज हैं। इस सिलसिले में गुरमिटकाल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ है। SP यादगीर ऋषिकेश भगवान सोनावानी ने परमेश्वर पल्ली का दौरा करके मुकाम वारदात का मुआयना किया। ಬರುವಂತ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಳ್ಳಿ ಅಂತ ಊರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಸೂಲ್ ಅನ್ನೋರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗಳದು ಮದುವೆ ಇತ್ತು. ಆ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಊರಿನ ಒಂದು ರೌಡಿ ಪಾರ್ಶ್ವಭೂಮಿ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಅನ್ನೋನು ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಕೆಲವು ಜನ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೂರು ಬಂದಿದೆ. ಆ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ क्राइम रजिस्टर ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು। इलाका कल्याण कर्नाटक में आज कोरोना का सबसे ज़्यादा कहर बेल्लारी ज़िले में दिखाई दिया। बेल्लारी ज़िले में आज कोरोना से 736 अफराद मुतासिर हुए, जबकि बेल्लारी ज़िला में कोरोना के मज़ीद 4 मरीज़ों की मौत हुई। बेल्लारी ज़िला में आज कोरोना के 404 मरीज़ों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। रायचूर ज़िले में आज कोरोना से 49 मरीज़ों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस तरह रायचूर ज़िले में अब तक कोरोना के 2390 मरीज़ सेहतियाब हुए हैं। रायचूर ज़िले में कोरोना से मज़ीद 2 अमवात हुई हैं। इस तरह रायचूर ज़िले में अब तक कोरोना से 42 अमवात हुई हैं। गुलबर्गा ज़िला में आज 156 कोरोना के नए केस सामने आए। गुलबर्गा ज़िला में अब तक कोरोना से 7693 अफराद मुतासिर हुए हैं। गुलबर्गा ज़िला में कोरोना से आज मज़ीद 1 मौत हुई। इस तरह गुलबर्गा ज़िला में अब तक कोरोना के 142 मरीज़ों की मौत हुई है। गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना के 155 मरीज़ों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया।
इस तरह गुलबर्गा ज़िला में अब तक 4,992 कोरोना के मरीज़ सेहतियाब हो चुके हैं। यादगीर ज़िले में आज कोरोना के 102 मरीज़ों का पता चला। यादगीर ज़िले में अब तक 3,231 अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं। यादगीर ज़िले में आज कोरोना के 82 मरीज़ों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। यादगीर ज़िले में अब तक कोरोना के 2,216 मरीज़ सेहतियाब हो चुके हैं। बीदर ज़िले में आज कोरोना के 73 नए केस सामने आए। इस तरह बीदर में कोरोना मरीज़ों की तादाद बढ़कर 3,014 हो गई है। बीदर ज़िले में आज 127 कोरोना के मरीज़ों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस तरह बीदर ज़िले में अब तक 2,067 कोरोना के मरीज़ सेहतियाब हो चुके हैं। बीदर ज़िले में कोरोना से मज़ीद 2 अमवात हुई। इस तरह बीदर ज़िले में अब तक कोरोना के 100 मरीज़ों की मौत हो चुकी है। कोप्पल ज़िले में आज कोरोना के 169 केस सामने आए। इस तरह कोप्पल ज़िले में कोरोना मरीज़ों की तादाद बढ़कर 2,599 हो गई। कोप्पल ज़िले में आज कोरोना के 82 मरीज़ सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। इसी तरह कोप्पल ज़िले में अब तक 1,219 कोरोना के मरीज़ सेहतियाब हो चुके हैं। कोप्पल ज़िले में आज कोरोना के 3 मरीज़ों की मौत हुई। इस तरह कोप्पल ज़िले में कोरोना से 42 अमवात अब तक हुई हैं। कल्याण कर्नाटक में आज कोरोना से 12 मरीज़ों की मौत हुई। कर्नाटक में आज कोरोना से 186 अमवात हुई। कर्नाटक में अब तक कोरोना से जुमला 3,398 अमवात हुई हैं। कर्नाटक में आज कोरोना से 6,257 अफराद मुतासर हुए। इस तरह कर्नाटक में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,88,611 हो गई है। कर्नाटक में आज कोरोना के 6,473 मरीज़ों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस तरह कर्नाटक में अब तक 1,05,599 मरीज़ सेहतियाब हो चुके हैं। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है।